आणि यानंतर आपण सर्वजण ऐकायला उत्सुक आहोत. सन्माननीय जयराम रमेशजी. Right, thank you, Sudhir. As the Honorable Minister gets ready to speak, I guess I'll just leave the podium to him. Thank you so much. My good friend, colleague, one of the most effective rural development ministers in the country, Shri Jayant Patilji. My young friend, young colleague, Satej Patilji, officials of the central government, officials of the state government, friends. First of all, I wish to congratulate all those of you who have received the awards this evening. And I also wish to congratulate the mission director for bringing new life into the National Rural Livelihoods Mission in Maharashtra. Umaid has kindled Umaid in me that Maharashtra will now be a major success story for the National Rural Livelihoods Mission. Over 1,000 years ago, the Bhakti movement started in South India and spread upward. Came to Maharashtra, came to Gujarat, went to North India. 30 years ago, the IT revolution started in South India and spread upward. The women's self-help group movement is the third instance of technology transfer from South India to the rest of the country. The women's self-help group movement started in states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. And based on the success of these four states, the Government of India launched the National Rural Livelihoods Mission. And the objective of the National Rural Livelihoods Mission, as most of you know, that in the next 5 years, we must ensure that every woman from a poor family is a member of a self-help group. Today, we have 2.5 million self-help groups in the country with about 3 crore women as members. In the next 5 years, we want to increase the number of women self-help groups from 2.5 million to about 6 million. And the number of women members from about 3 crores to 7 crores. That is the broad objective of the National Rural Livelihoods Mission. But I want to stress that the objective of the NRLM is not just to set up women's self-help groups, but more importantly, to link the women's self-help groups to banks. Last year, in 2012-2013, the banks lent collectively 20,000 crores of rupees to women's self-help groups. Out of these 20,000 crores, 12,000 crores was in Andhra Pradesh alone. 2,000 crores was in Tamil Nadu. About 1,600 crores was in Karnataka. And about 1,000 crores was in Kerala. So 80% of all bank lending was accounted for by these 4 South Indian states. But in the next 5 to 10 years, the challenge for us is to not only establish self-help groups, but also make sure that they are linked with banks across the country. I am pleased to say that after the 4 South Indian states, Bihar, where most people think nothing worthwhile happens, actually in Bihar, we are seeing a remarkable transformation. And the women's self-help group movement in Bihar today, I would say, is today's success story. Andhra was yesterday's success story, but today's success story is Bihar. Assam, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, these are the states that are coming up.
And I think Maharashtra has got on to the bus somewhat late, little slowly. But having got onto the bus, I think Maharashtra should now move forward very quickly. मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में 3 चीजें कहना चाहता हूं. महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा मैं समझता हूं महाराष्ट्र में अगले 5 साल में सारे महाराष्ट्र को हागेंदारी मुक्त बनाना चाहिए. ये सबसे बड़ी चुनौती है और अगर एक राज्य कर सकता है वो महाराष्ट्र कर सकता है. घाटगे बाबा हमारे लिए हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और महाराष्ट्र में करीब 28,000 ग्राम पंचायतों में से करीब 9,500 निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार पा चुके हैं. तो मुश्किल नहीं है, अगर सरकार चाहती है ये हो सकता है. मैं हमारे जो साथी बैठे हुए हैं विजय कुमार जी से कई 2 साल से मैं उनसे लड़ाई लड़ रहा हूं कि महिला स्वयं सहायता समूहों को सिर्फ बैंकों से पैसा मत दिलवाइए, उनको शौचालय बनाने का काम भी दीजिए. क्योंकि आज भी जो हमें देखने को मिलता है हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हमारे लिए नाराजगी की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में 60% से भी ऊपर महिलाएं खुले में शौच करती हैं. ये महिलाओं की आत्मसम्मान का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, महिलाओं की गरिमा का सवाल है. मुझे खुशी है कुछ राज्यों में जागृति आई है. सिक्किम हमारा पहला राज्य बना है जो खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है. केरल में अगले 2-3 महीनों में मैं समझता हूं खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा और इस साल हिमाचल प्रदेश हमारे देश का तीसरा राज्य ऐसा बनेगा. महाराष्ट्र को यह चुनौती स्वीकारना चाहिए और मैं ग्रामीण विकास मंत्री और उनके साथी मंत्री दोनों से विनती करता हूं कि वो घोषणा करें कि अगले 4-5 साल में महाराष्ट्र के सारे 28,000 ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त, हागेंदारी मुक्त ग्राम पंचायत बनेंगे और बनेंगे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा. यह बात सोचने, असली इनोवेशन यह है. मैंने आज कुल 35 स्टॉल देखे पर एक स्टॉल में मैंने शौचालय नहीं देखा. शौचालय मैं समझता हूं सबसे बड़ा काम अभी महिला स्वयं सहायता समूह को शौचालयों के बारे में है. सभी महिलाओं को हम पंचसूत्र पढ़ाते हैं. ये आंध्रा का ब्रेन वॉशिंग है, विजय कुमार साहब का एक ब्रेन वॉशिंग है. सारे महिलाओं को उन्होंने पंचसूत्र बताया है. ये पंचसूत्र क्या है? वक्त पर मीटिंग, वक्त पर बचत, वक्त पर सदस्यों को बैंकों से लेकर पैसा देना, वक्त पर पैसा वापस लौटाना बैंकों को और वक्त पर खाता रखना. ये पंचसूत्र हैं. मैंने इनको कहा है इसको 4 कीजिए और ये 5वां खुले में शौच एक पंचसूत्र होना चाहिए, खुले में शौच मुक्त. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. हमारे विजय कुमार जी आंध्र प्रदेश की बहुत वकालत करते हैं. ऑंग सान सूची आई थी हिंदुस्तान में. आप जानते हैं ऑंग सान सूची कौन है. और मुझे कहा गया कि आप इनको ले जाइए और आंध्र प्रदेश के महिलाओं से मिलवाइए. जयंत जी, तो मैं ऑंग सान सूची को ले गया. अनंतपुर जिले में मुख्यमंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, सब लोग बड़े शेर के माफिक घूम रहे थे कि ऑंग सान सूची आई है आंध्रा के महिला स्वयं सहायता समूह से मिलने के लिए. तो करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई. मुख्यमंत्री
हंसते रहे, रघुवीर रेड्डी जो आप जानते हैं हंसते रहे, विजय कुमार के साथी सब लोग, कॉलर ऊपर हो गया कि इन महिलाओं ने एक कुछ करिश्मा दिखा दिया और ऑंग सान सू ची से सर्टिफिकेट मिल गया। तो 1 घंटे के बाद जब हम निकल रहे थे, मैंने ऑंग सान सू ची से कहा, मैडम 1 मिनट रुक जाइए, मैं महिलाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आपको यह सवाल का जवाब सुनवाना चाहता हूं। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, करीब 25-30 महिलाएं होंगी, मैंने उनसे पूछा, हर एक महिला को, किन किन महिलाओं के पास शौचालय है और किन महिलाओं के पास शौचालय नहीं है। ये महिलाएं अपने नए नए साड़ी में आए थे, गहने पहने हुए थे, चूड़ी थी, नेकलेस था, नाक में जो डालते हैं दक्षिण भारत में वो भी मूक बट्टू, व्हाट डू यू कॉल फॉर इन मराठी, या वो मूक बट्टू कहते हैं तेलुगु में, सब लोग थे। और आपको हैरान होगी, 80% महिलाओं ने कहा कि हम खुले में शौच करते हैं। तो मैंने पूछा इनसे कि क्या फायदा, 12,000 करोड़ रुपया आप बैंक से लेते हैं, रोज मिलते हैं, गाना गाते हैं, सारे दुनिया में आपका नाम कमा लिया है, पर आपके पास शौचालय नहीं है। तो साथियों, महाराष्ट्र ने देश को रास्ता दिखाया है। संत गाडगे बाबा महाराज महाराष्ट्र के हैं। आपके फिल्म में मैंने भीमराव अंबेडकर जी को देखा, ज्योतिबा फुले को देखा, सावित्रीबाई फुले को देखा और कई लोगों को देखा, पर संत गाडगे बाबा को नहीं देखा। फिल्म के सेकेंड एडिशन में आप गाडगे बाबा जी का फोटो लगाइए। और मुझे खुशी है सतेज पाटिल यहां बैठे हुए हैं, मैं इनका जिक्र करना चाहता हूं। कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र का दूसरा जिला बनेगा जो खुले में शौच मुक्त होगा। सिंधुदुर्ग खुले में शौच मुक्त हो चुका है, जो संधू साहब के पहले ग्रामीण विकास सचिव थे ठाकरे जी, उनकी मेहनत से सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का पहला जिला बना। और मुझे खुशी है कि कोल्हापुर जिला मुश्किल से 30-35 ग्राम पंचायत बाकी हैं। अगर सतेज मन लगाएं और सतेजी से काम करें तो मैं समझता हूं कोल्हापुर भी ये दर्जा प्राप्त करेगा। पर जैन जी, हम लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, रहने वाले परमानेंट लोग ये हैं, इनको आप कहिए कि आप जो कुछ करिए करते रहिए, पर मुझे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महाराष्ट्र के हर एक ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाना है, हागेंदारी मुक्त बनाना है। तो ये मेरा आपसे पहला निवेदन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी यहां नहीं है। अप्रैल 2011 को मुख्यमंत्री और मैं गढ़चिरौली गए थे और गढ़चिरौली में एक गांव गए थे, मेंढा लेखा। गढ़चिरौली से हैं कोई यहां? हाँ, अरे इनके साथ मैं गया था, सुहास वहां बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ गया था अप्रैल 2011 को। और वहां देवाजी तोहफा नाम का एक अजीब सा व्यक्ति था, गोंड व्यक्ति, और बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा, साहब आप यहां आए हैं मेंढा लेखा में, मेंढा लेखा में एक ही नारा है, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेखा में हम ही सरकार। हम लोग गए थे एक काम करने के लिए, बांटिया जी को भी याद होगा, महाराष्ट्र के अधिकारी ये करना नहीं चाहते थे।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल इसके खिलाफ था। सतेज, आपको भी याद होगा, बांबू का ट्रांजिट पासबुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर हमने ग्राम सभा को सौंपी। मेंढा लेका ग्राम पंचायत की आमदनी अभी 1.5 करोड़ सालाना है। 1.5 करोड़ एक ग्राम पंचायत की है ना, 1.5 करोड़। मुश्किल से 20-25 हजार 30 हजार मिलता था। मैं चाहता हूं जयंत जी कि इस प्रक्रिया में महिला स्वयं सहायता समूह भी जोड़ा जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ा जाए, जिस तरीके से केरल में हुआ है। और ये जो आमदनी आती है, अतिरिक्त आमदनी जो आती है, ये महिला स्वयं सहायता समूह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अफसोस की बात है, गर्व की बात है कि देश में पहला गांव मेंढा लेखा था। अफसोस की बात है कि मेंढा लेखा के बाद दूसरा गांव हमने नहीं पाया अभी तक। यह एक अभियान होना चाहिए, यह एक कैंपेन होना चाहिए। महाराष्ट्र में कितने हैं, 800 गांव हो सकते हैं। 800 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिया गया है। 800-900 गांव तो हो सकते हैं जहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दी गई है, सामूहिक फॉरेस्ट राइट्स दिया गया है। वहां बांबू की जिम्मेदारी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर ग्राम सभा या महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपिए और आप क्रांति देखिए जमीन पर। तो ये दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, आपने देश को एक मार्गदर्शन दिया है, इसको आप आगे ले चलिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, और वो खास तौर से महाराष्ट्र में मैंने आज देखा है, ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसका वैल्यू एडिशन होना बहुत जरूरी है। आज क्या होता है, आदिवासी जंगल में जाते हैं, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं और कोई बिछोली, कोई मिडलमैन आकर खरीद देता है और 1 रुपये का माल 1000 रुपये में बिकता है और आदिवासी को वो माल का सही मूल्य वापस नहीं मिलता है। जो क्रांति वर्गीस कुरियन साहब ने दूध में किया है, वो क्रांति हमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में करना है। यानी कि जो आदिवासी सामान इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं, जब बेचा जाता है उसका पूरा मूल्य वापस आदिवासी को पहुंचाया जाए। आज दूध 25-26 रुपया लीटर है और उस 25-26 रुपये लीटर का करीब 75% वापस किसान को जाता है। वो हमें लाने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने कुछ ऐसे स्टॉल देखे। आज अभी भी मेरे हाथ में किसी औरत ने एलोवेरा का क्रीम मेला था, वो अभी भी मैं सूंघ रहा हूं। एलोवेरा बाजार में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, पर जब हिंदुस्तान लीवर एलोवेरा का साबुन बनाती है, वो आदिवासी को उससे कोई फायदा नहीं होता है, हिंदुस्तान लीवर को फायदा होता है, या जो एलोवेरा इकट्ठा करता है उसको फायदा होता है। एक और मैंने देखा, टसर, ये बहुत महत्व रखता है। टसर खास तौर से आदिवासी इलाकों में टसर से कपड़े बनाना, उसका ब्रांडिंग करना, उसको बाजार में बेचना, मैं समझता हूं ये हमारे लिए, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए एक चुनौती है। कुरियन साहब की नजरिए में क्या क्रांति उन्होंने हमारे देश में लाई?
उन्होंने एक साधारण और मामूली सिद्धांत हमारे सामने रखा। जैन जी, आप भी डेयरी चलाते हैं, आपको जानकारी होगी, पर 50 साल पहले जब कुरियन साहब ने ये कहा तब लोगों ने उनकी बहुत आलोचना की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उत्पादन करता है गांव वाला और ग्राहक है शहर में। हमें उत्पादन करने वाले को ग्रामीण इलाके में शहरी ग्राहक के साथ जोड़ना है और जो शहरी ग्राहक मूल्य देता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वापस ग्रामीण उत्पादक को लौटाना चाहिए। तो टसर हो या साल हो या महुआ हो, ऐसे बहुत सी चीजें, एलोवेरा हो, महाराष्ट्र के कई जिलों में जड़ी बूटियां भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, और बड़ी बड़ी कंपनियां जड़ी बूटियों से औषधि बनाती है। जब मैं छोटा था, आप लोगों में से कितने को, मैं उम्मीद करता हूं आप में से ज़्यादा लोग जॉन्डिस की बीमारी से नहीं पीड़ित होंगे, पर जब मैं छोटा था मुझे लिव 52 याद है। हिमालय ड्रग कंपनी लिव 52 बनाती है और लिव 52 जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और वो जड़ी बूटी पश्चिम घाट, गढ़चिरौली, ये मध्य भारत, दंडकारण्य इलाके से इकट्ठा किया जाता है। तो इन 3 महत्वपूर्ण काम